بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان ایمان فی روشن کے ایپیسوڈ نمبر 8 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صلیبیوں کے بحری بیڑے اور افواج کو بحر الروم میں غرق کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی مصر کے ساحلی علاقے میں ہی موجود تھا۔ 7 دن گزر گئے تھے۔ صلیبیوں سے تاوان وصول کیا جا چکا تھا، مگر بحر الروم ابھی تک بچے کھچے بحری جہازوں کو، کشتیوں کو نگل اور انسانوں کو اگل رہا تھا۔ صلیبی ملاح اور سپاہ جلتے جہازوں سے سمندر میں کود گئے تھے۔ دور سمندر کے وسط میں 7 روز بعد بھی چند ایک جہازوں کے بادبان پھڑ پھڑاتے نظر آتے تھے۔ ان میں کوئی انسان نہیں تھا۔ پھٹے ہوئے بادبانوں نے جہازوں کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی تلاشی کے لیے کشتیاں روانہ کر دی تھیں اور ہدایت دی تھی کہ اگر کوئی جہاز یا کشتی کام کی ہو تو وہ رسوں سے گھسیٹ کر لے آئیں، اور جو اس قابل نہ ہو ان میں سے سامان اور کام کی دیگر چیزیں نکال کے لے آئیں۔ کشتیاں چلی گئی تھیں اور جہازوں سے سامان لایا جا رہا تھا۔ ان میں زیادہ تر اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان تھا یا صرف لاشیں۔ سمندر میں لاشوں کا یہ عالم تھا کہ لہریں انہیں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پٹک رہی تھیں۔ ان میں کچھ تو جلی ہوئی تھیں اور کچھ مچھلیوں کی کھائی ہوئی، بہت سی ایسی تھیں جن میں تیر پیوست تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے تیروں، نیزوں، تلواروں اور دیگر اسلحے کا معائنہ بڑی غور سے کیا تھا اور انہیں اپنے اسلحے کے ساتھ رکھ کر مضبوطی اور مار کا مقابلہ کیا تھا۔ زندہ لوگ بھی تختوں اور ٹوٹی ہوئی کشتیوں پر تیرتے ابھی تک سمندر سے باہر آ رہے تھے۔ ان بھوکے، پیاسے، تھکے اور ہارے ہوئے لوگوں کو لہریں جہاں کہیں ساحل پر لا پھینکتی تھیں، وہ وہیں نڈھال ہو کر گر پڑتے اور مسلمان انہیں پکڑ لاتے تھے۔ ساحل کی میلوں لمبائی میں یہی عالم تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی سپاہ کو مصر کے سارے ساحل پر پھیلا دیا تھا اور انتظام کیا تھا کہ جہاں بھی کوئی قیدی سمندر سے نکلے اسے وہیں خشک کپڑے اور خوراک دے دی جائے، اور جو زخمی ہوں ان کی مرہم پٹی بھی وہیں ہو جائے۔ اس اہتمام کے بعد قیدیوں کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ساحلی علاقے میں گھوم پھر رہا تھا۔ وہ اپنے خیمے سے کوئی 2 میل دور نکل گیا۔ آگے چٹانی علاقہ آ گیا۔ چٹانوں کی ایک سمت سمندر اور عقب میں صحرا تھا۔ یہ سرسبز صحرا تھا جہاں کھجور کے علاوہ دوسری اقسام کے صحرائی درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے سے اترا اور پیدل چٹانوں کے دامن میں چل پڑا۔ محافظ دستے کے 4 سوار اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اپنا گھوڑا محافظوں کے حوالے کیا اور انہیں وہیں ٹھہرنے کو کہا۔ اس کے ساتھ 3 سالار تھے، ان میں اس کا رفیق خاص بہاؤالدین شداد بھی تھا۔ وہ اس مارکے سے 1 روز پہلے ہی عرب سے اس کے پاس آیا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے محافظوں کے حوالے کیے اور سلطان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ موسم سرد تھا، سمندر میں تلاطم نہیں تھا، لہریں آتی تھیں اور چٹانوں سے دور ہی واپس چلی جاتی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ٹہلتے ٹہلتے دور نکل گیا اور محافظ دستے کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے آگے پیچھے اور بائیں طرف اونچی نیچی چٹانیں اور دائیں طرف ساحل کی ریت۔ وہ ایک چٹان پہ کھڑا ہو گیا جس کی بلندی 2-2.5 گز تھی۔ اس نے بحیرہ روم کی طرف دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر کی نلاہٹ سلطان ایوبی کی آنکھوں میں اتر آئی ہو۔ اس کے چہرے پر فتح و نصرت کی مسرت تھی اور اس کی گردن کچھ زیادہ ہی تن گئی تھی۔ اس نے ناک سکیڑ کر کپڑا ناک پر رکھ لیا، بولا کس قدر تعفن ہے۔ اس کی اور سالاروں کی نظریں ساحل پر گھومنے لگیں۔ پھڑ پھڑانے کی آوازیں سنائی دیں، پھر ہلکی ہلکی چیخیں اور سیٹیاں سی سنائی دیں۔ اوپر سے 3-4 گز پر پھیلائے اترتے دکھائی دیے اور چٹان کی اوٹ میں جدھر ساحل تھا اتر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا لاشیں ہیں۔ ادھر گیا تو 15-20 گز دور گدھ 3 لاشوں کو کھا رہے تھے۔ ایک گدھ ایک انسانی کھوپڑی پنجوں میں دبوچ کر اڑا اور جب فضا میں چکر کاٹا تو کھوپڑی اس کے پنجوں سے چھوٹ گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آن گری۔ کھوپڑی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہی ہوں۔ چہرے اور بالوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ کسی صلیبی کی کھوپڑی ہے۔ ایوبی کچھ دیر کھوپڑی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور کہا ان لوگوں کی کھوپڑیاں مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہ ان کھوپڑیوں کا کمال ہے کہ ہماری خلافت عورت اور شراب کی نظر ہوتی جا رہی ہے۔
सलीबी चूहों की तरह सल्तनत इस्लामिया को हड़प करते चले जा रहे हैं। एक सालार ने कहा, और हमारे बादशाह उन्हें जिजिया दे रहे हैं। शद्दाद ने कहा, फ़लस्तीन पर सलीबी काबिज हैं। सुल्तान, क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि हम फ़लस्तीन से उन्हें निकाल सकेंगे? खुदा की ज़ात से मायूस न हो शद्दाद, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा। हम अपने भाइयों की ज़ात से मायूस हो चुके हैं। एक और सालार बोला, तुम ठीक कहते हो, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा। हमला जो बाहर से होता है उसे हम रोक सकते हैं। क्या तुम में से कोई सोच भी सकता था कि कुफार के इतने बड़े बहरी बेड़े को तुम इतनी थोड़ी ताकत से नजर आतिश करके डबो सकोगे? तुमने शायद अंदाजा नहीं किया कि इस बेड़े में जो लश्कर आ रहा था वो सारे मिस्र पर मक्खियों की तरह छा जाता। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी और हमने खुले मैदान में नहीं बल्कि सिर्फ घात लगाकर इस लश्कर को समंदर की तह में गुम कर दिया। मगर मेरे दोस्तों, हमला जो अंदर से होता है उसे तुम इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। जब तुम्हारा अपना भाई तुम पर वार करेगा तो तुम पहले ये सोचोगे कि क्या तुम पर वाकई भाई ने वार किया है। तुम्हारे बाजू में उसके खिलाफ तलवार उठाने की ताकत नहीं होगी। अगर तलवार उठाओगे और अपने भाई से तेग आजमाई करोगे तो दुश्मन मौका गनीमत जानकर तुम दोनों को खत्म कर देगा। वो आहिस्ता आहिस्ता साहिल पर चट्टान के साथ साथ जा रहा था। चलते चलते रुक गया, झुककर रेत से कुछ उठाया और हथेली पर रखकर सबको दिखाया। ये हथेली जितनी बड़ी सलीब थी जो स्याह लकड़ी की बनी हुई थी। उसके साथ एक मजबूत धागा था। उसने उन लाशों के बिखरे हुए अज़ा को देखा जिन्हें गिद्ध खा रहे थे। फिर खोपड़ी को देखा जो गिद्ध के पंजों से उसके सामने गिरी थी। वो तेज तेज कदम उठाता खोपड़ी तक गया। 3 गिद्ध खोपड़ी की मलकियत पर लड़ रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को देखकर परे चले गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबी खोपड़ी परे रख दी और दौड़कर अपने सलारों से जा मिला। कहने लगा कि मैंने सलीबियों के एक अफसर उसकी बातें सुनी थी। उसके गले में भी सलीब थी। उसने बताया था कि सलीबी लश्कर में जो भर्ती होता है उससे सलीब पर हाथ रखकर हलफ लिया जाता है कि वो सलीब के नाम पर जान की बाजी लगाकर लड़ेगा और रूए ज़मीन से आखिरी मुसलमान को भी ख़त्म करके दम लेगा। इस हलफ के बाद हर लश्करी के गले में सलीब लटका दी जाती है। ये सलीब मुझे रेत से मिली है, मालूम नहीं किसकी थी। मैंने इस खोपड़ी पर रख दी है ताकि इसकी रूह सलीब के बगैर ना रहे। उसने सलीब की खातिर जान दी है। सिपाही को सिपाही के हलफ का एहतराम करना चाहिए। सुल्तान, शद्दाद ने कहा, यह तो आपको मालूम है कि सलीबी यरूशलेम के मुसलमान बाशिंदों का कितना कुछ एहतराम कर रहे हैं। वहां से मुसलमान बीवी बच्चों को साथ लेकर भाग रहे हैं। हमारी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। हमारे कैदियों को उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। मुसलमान जानवरों की सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हम उन ईसाइयों से इंतकाम नहीं लेंगे? इंतकाम नहीं, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा। हम फ़लस्तीन लेंगे, मगर फ़लस्तीन के रास्ते में हमारे अपने हुक्मरान हायल हैं। वो चलते चलते रुक गया और फिर बोला, कुफार ने सलीब पर हाथ रखकर सल्तनत इस्लामिया के खात्मे का हलफ उठाया है। मैंने अपने अल्लाह के हुजूर खड़े होकर अपने हाथ अपने सीने पर रखकर कसम खाई है कि फ़लस्तीन ज़रूर लूँगा और सल्तनत इस्लामिया की सरहदें उफ़क़ तक ले जाऊँगा। मगर मेरे रफ़ीको, मुझे अपनी तारीख का मुस्तकबिल कुछ रोशन नज़र नहीं आता। एक वक्त था कि ईसाई बादशाह थे और हम जंगजू। अब हमारे बुजुर्ग बादशाह बनते जा रहे हैं और ईसाई जंगजू। दोनों कौमों का रुझान देख लें और देखकर मैं ये कह रहा हूँ कि एक वक्त ये भी आएगा कि जब मुसलमान बादशाह बन जाएंगे मगर ईसाई उन पर हुकूमत करेंगे। मुसलमान इसी में बदमस्त रहेंगे कि हम बादशाह हैं, आज़ाद हैं, मगर वो आज़ाद नहीं होंगे। मैं फ़लस्तीन ले लूँगा, मगर मुसलमानों का रुझान बता रहा है कि वो फ़लस्तीन गंवा बैठेंगे। ईसाइयों की खोपड़ी बड़ी तेज़ है। 50,000 सोडानी लश्कर को कौन पाल रहा था? हमारी खिलाफत अपनी आसीन में नाजी नाम का सांप पालती रही। मैं पहला अमीर मिस्र हूँ जिसने देखा है कि ये लश्कर हमारे लिए न सिर्फ बेकार है बल्कि ख़तरनाक भी है। अगर नाजी का खत पकड़ा न जाता तो आज हम सब इस लश्कर के हाथों मर जा चुके होते या उसके कैदी होते। अचानक हल्का सा सुनाटा सुनाई दिया और एक तीर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दोनों पांव के दरमियान रेत में लगा। जिधर से तीर आया था उस तरफ सुल्तान अयूबी की पीठ थी। सलारों में से कोई उधर देख नहीं रहा था। सबने बिदक कर उस तरफ देखा जिधर से तीर आया था।
उधर नोकली चट्टानें थी। तीनों सलार और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दौड़कर एक ऐसी चट्टान की ओट में हो गए जो दीवार की तरह उमूदी थी। उन्हें तवक्को थी कि और भी तीर आएंगे। तीरों के सामने मैदान में खड़े रहना कोई बहादुरी नहीं थी। शद्दाद ने मुंह में उंगली रखकर जोर से सीटी बजाई। मुहाफिज दस्ता पाबरकाब था। उनके घोड़ों के सरपाट टापू सुनाई दिए। इसके साथ ही तीनों सालार इस तरफ दौड़ पड़े जिस तरफ से तीर आया था। वो बिखर कर चट्टानों पे चढ़ गए। चट्टानें ज्यादा ऊंची नहीं थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी भी उनके पीछे गया। एक सालार ने उसे देख लिया और कहा, सुल्तान आप सामने ना आए। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रुके नहीं। मुहाफिज पहुंच गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें कहा, हमारे घोड़े यही छोड़ दो और चट्टानों के पीछे जाओ। उधर से एक तीर आया है, जो कोई भी नजर आए उसे पकड़ के ले आना। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी चट्टान के ऊपर गया तो उसे ऊंची नीची चट्टानें दूर दूर तक फैली हुई नजर आईं। वो अपने सालारों को साथ लिए पिछली तरफ गया और हर तरफ घूम फिर कर और चट्टानों पर चढ़कर देखा। किसी इंसान का नामो निशान तक नजर न आया। मुहाफिज चट्टानी इलाके के अंदर ऊपर और इधर उधर घोड़े दौड़ा रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नीचे उतर के वहां गया जहां रेत में तीर गड़ा हुआ था। उसने अपने रफीकों को बुलाया और तीर पर हाथ मारा। तीर गिर पड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, दूर से आया है इसलिए पाँव में लगा है, वरना गर्दन या पीठ में लगता। रेत में भी ज्यादा नहीं उतरा। उसने तीर उठाकर देखा और कहा, सलीबियों का है, हशीशीन का नहीं है। सुल्तान की जान खतरे में है, एक सालार ने कहा, और हमेशा खतरे में रहेगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हंसकर कहा, मैं बुहीरा रूम में कुफार की वो कश्तियां देखने निकला था जो मुल्लाहों के बगैर डोल रही हैं। मगर मेरे अजीज दोस्तों, कभी न समझना कि सलीबियों की कश्ती डोल रही है। वो फिर आएंगे, वो दोबारा आएंगे, घटाओं की तरह, गरजते बादल की तरह, और बरसेंगे फिर। लेकिन वो जमीन के नीचे से और पीठ के पीछे से भी वार करेंगे। हमें अब सलीबियों से ऐसी जंग लड़नी है जो सिर्फ फौजी नहीं लड़ेंगे। मैं जंगी तरबियत में एक इजाफा कर रहा हूँ। ये फन हर्ब व ज़रब का नायाब बाब होगा। इसे जासूसों की जंग कहते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तीर हाथ में लिए घोड़े पर सवार हो गए और अपने कैंप की तरफ चल पड़े। उसके सालार भी घोड़ों पर सवार हो गए। उनमें से एक ने सुल्तान के दाएं तरफ अपना घोड़ा कर दिया और एक ने बाएं को। एक ने अपना घोड़ा उसके बिल्कुल पीछे और करीब रखा ताकि किसी भी तरफ से तीर आए तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तक ना पहुंच सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उस तीर पर जरा सी भी परेशानी का इजहार न किया जो किसी ने उसे कत्ल करने के लिए चलाया था। अपने रफीक सलारों को अपने खैमे में बिठाए हुए वो बता रहा था कि जासूस और शब खून मारने वाले दस्ते किस कदर नुकसान करते हैं। वो कह रहा था, मैं अली बिन सुफियान को एक हिदायत दे चुका हूँ, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका क्योंकि फौरन ही मुझे इस हमले की खबर मिली और अमल दरामद अधूरा रह गया। तुम सब फौरी तौर पर यूं करो कि अपने सिपाहियों और उनके ओहदेदारों में से ऐसे अफराद मुंतखब करो जो दिमागी और जिस्मानी लिहाज से बहुत मजबूत और सेहतमंद हों, बारीक बीन, दूर अंदेश, कुव्वत फैसला रखने वाले जांबाज किस्म के आदमी चुनो। मैंने अली को ऐसे आदमियों की जो सिफात बताई थी वो सब सुन लो। उनमें ऊंट की माने ज्यादा से ज्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की कुव्वत हो, चीते की तरह झपटना वो जानते हों, उकाब की तरह उनकी नजरें तेज हों, खरगोश और हिरन की तरह वो तेज दौड़ सकते हों, मुसल्ला दुश्मन से हथियार के बगैर भी लड़ सकें, उनमें शराब और किसी दूसरी नशावर चीज़ की बिल्कुल आदत ना हो, किसी लालच में ना आए। औरत कितना ही हसीन मिल जाए, वो ज़रो जवाहरात के अंबार उनके कदमों में भी लगा दिए जाएं, वो नज़र अपने फ़र्ज पर रखें। ऐसे इंसान ढूंढो। अपने दोस्तों और उनके कमानदानों को ख़ास तौर पर ज़हन नशीन करा दें कि ईसाई बड़ी ही खूबसूरत और जवान लड़कियों को जासूसी के लिए और फौजों में बेइत्मीनानी फैलाने के लिए और अस्करियों को जज्बे के लिहाज से बेकार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने मुसलमानों में ये कमज़ोरी देखी है कि औरत के आगे हथियार डाल देते हैं। मुसलमान औरत को इस मकसद के लिए दुश्मन के इलाके में मैं कभी नहीं भेजूंगा। हम असमतों के मुहाफिज हैं, असमत को हथियार नहीं बनाएंगे। अली बिन सुफियान ने चंद एक लड़कियां रखी हुई थी, लेकिन वो मुसलमान नहीं थी।
वो ईसाई भी नहीं, मगर मैं औरत का कायल नहीं। मुहाफिज दस्ते का कमांडर खैमे में आया और इतला दी कि मुहाफिज कुछ लड़कियों और आदमियों को साथ लाए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बाहर निकले, उसके तीनों सलार भी साथ थे। बाहर 5 आदमी खड़े थे जिनके लंबे चुखे दस्तारें और डेल डोल बता रही थी कि ताजिर हैं और सफ़र में हैं। उनके साथ 7 लड़कियां भी थीं। 7वीं जवान थी और एक से बढ़कर एक खूबसूरत। और मुहाफिजों में से एक ने, जो सुल्तान पर तीर चलाने वाले की तलाश में गए थे, बताया कि उन्होंने तमाम इलाका छान मारा, उन्हें कोई आदमी नजर नहीं आया। दूर पीछे गए तो ये लोग 3 ऊँटों के साथ डेरा डाले हुए थे। क्या इनकी तलाशी ली? एक सालार ने पूछा। ली है, मुहाफिज ने जवाब दिया। ये कहती हैं कि ये ताजिर हैं। इनका सारा सामान खुलवा कर देखा, जामे तलाशी भी ली। इनके पास इनके खंजरों के सिवा और कोई भी हथियार नहीं। उसने 5 खंजर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के कदमों में रख दिए। हम मराकश के ताजिर हैं, एक ताजिर ने कहा। सिकंदरिया तक जाएंगे। 2 रोज गुजरे। हमारे क्याम यहाँ से कोई 10 कोस पीछे था। परसों शाम ये लड़कियां हमारे पास आईं। इनके कपड़े भीगे हुए थे। उन्होंने बताया कि ये सिल्ली की रहने वाली हैं। उन्हें ईसाई फौज का एक कमांडर घरों से पकड़कर साथ ले आया और एक बहरी जहाज में जाकर सवार किया। इनके माँ बाप गरीब हैं। ये कहती हैं कि ये बेशुमार जहाज और कश्तियां चल पड़ी। लड़कियों वाले जहाज में चंद और कमांडर किस्म के आदमी थे और उनकी फौज भी थी। वो सब उन लड़कियों के साथ शराब पीकर ऐश व इशरत करते। इस साहिल के करीब आए तो जहाज़ों पर आग के गोले गिरने लगे। तमाम लोग जहाज़ों से समंदर में कूदने लगे। उन लड़कियों को उन्होंने एक कश्ती में बिठाकर जहाज से समंदर में उतार दिया। ये बताती हैं कि उन्हें कश्ती चलानी नहीं आती थी। कश्ती समंदर में डोलती और भटकती रही। फिर एक रोज़ खुद ही साहिल से आ लगी। हमारा क्याम साहिल के साथ था। ये हमारे पास आ गई। ये बहुत ही बुरी हालत में थी। हमने इन्हें अपनी पनाह में ले लिया। इन्हें हम धुकार भी सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम इनका क्या करें। पिछले पड़ाव से यहाँ तक इन्हें साथ ले आए। ये सवार आ गए और हमारे सामान की तलाशी लेने लगे। हमने इनसे तलाशी की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अमीर मिस्र का हुक्म है। हमने उनकी मिन्नत समाजित की कि हमें अपने सुल्तान के हुजूर ले चलो। हम अर्ज करेंगे कि इन लड़कियों को अपनी पनाह में ले ले। हम सफ़र में हैं, इन्हें कहाँ कहाँ लिए फिरेंगे। लड़कियों से पूछा तो वो सिल्ली की जुबान बोल रही थी। वो डरी डरी सी लगती थी। उनमें से 2-3 इकट्ठी ही बोलने लगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ताजरों से पूछा कि इनकी जुबान कौन समझता है। एक ने बताया कि सिर्फ मैं समझता हूँ। ये इल्तिजा कर रही हैं कि सुल्तान इन्हें पनाह में ले लो। कहती हैं कि हम ताजरों के काफिले के साथ नहीं जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में डाकू हमें उठा कर ले जाएं। इधर जंग भी हो रही है। हर तरफ ईसाइयों और मुसलमानों के सिपाही भागते दौड़ते फिर रहे हैं। हमें सिपाहियों से बहुत डर लगता है। हमें जब घरों से उठाया गया था तो हम सब कवारी थी। उन फौजियों ने बहरी जहाज में हमें तवाफ़ें बना रखा है। एक लड़की ने कुछ कहा तो उसकी ज़ुबान जानने वाले ताजिर ने सुल्तान अयूबी से कहा, ये कहती हैं कि हमें मुसलमानों के बादशाह तक पहुंचा दो, हो सकता है कि उसके दिल में रहम आ जाए। एक और लड़की बोल पड़ी, उसकी आवाज़ रंधाई हुई थी। ताजिर ने कहा, यह कहती है कि हमें ईसाई सिपाहियों के हवाले न किया जाए। मैं मुसलमान हो जाऊंगी बशर्ते कि कोई अच्छी हैसियत वाला मुसलमान मेरे साथ शादी कर ले। 2-3 लड़कियां पीछे खड़ी मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थीं। उनके चेहरों पे घबराहट थी, बात करते शर्माती या डरती थीं। आगे क्या हुआ वो इंशाअल्लाह हम अगली एपिसोड में बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।